السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 180 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 سے 206 196 سے 206 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے کل کی باتوں کو جوڑ کر تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ کل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا، مشرکین سے نہ ڈرنے کا بیان فرمایا، یہ بتایا کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے وہ چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان کی جو طاقت ہو کرے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي، کہ یقیناً میرا ولی وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ یعنی یہ تم جو مجھے ڈرا رہے ہو غیر اللہ کے نام سے، میرا ولی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ولی ہوتا ہے نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، صحیح عمل کرنے والوں کا۔ یعنی جب اللہ میرا ولی ہے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ تمہاری مدد کر سکتے نہ خود کی مدد کر سکتے۔ ان کے بتوں کے اوپر اگر کوئی چیز بیٹھ جائے، کوئی گندگی لگ جائے، ہٹا نہیں سکتے، سامنے کھانا رکھا ہے کھا نہیں سکتے، قبر کے اندر اگر ہے نہ سن سکتے نہ بتا سکتے، تو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر کسی بات کی طرف، ہدایت کی طرف تم انہیں بلاؤ تو وہ سنتے نہیں ہیں، اور تمہیں لگتا ہے وہ دیکھنے پر وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اور بت کیسے ہوتے تھے؟ انسان کی طرح شکلیں بنی ہوئی ہوتی تھی، باقاعدہ اسٹیچو بنے ہوئے ہوتے تھے، اس کی آنکھ کان ناک سب ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں پکارو گے تو سن نہیں سکتے، اور لگ رہا ہے کہ دیکھ رہے پر وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے بظاہر کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نظر آتی ہیں ان کی آنکھوں سے، ایسا لگتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں، پر وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کے کوئی طاقت، قوت اور قدرت و اختیار نہیں ہے۔
उसके बाद अल्लाह ताला अब एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाए उसकी तरफ निशानदेही करते हुए इरशाद फरमाता है, खुदिल अफ़्व, लोगों को माफ करो, व अमुर बिल उर्फ, भलाई का हुक्म दो, व आरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से एराज करो, यानी लोगों को माफ करते चले जाओ, भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से बहस मत करो, जाहिलों को छोड़ दो, उनको इग्नोर कर दो। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतान, अब अल्लाह ताला यहाँ पर शैतानी वसवसों का जिक्र कर रहा है कि अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आपको आ जाए तो अल्लाह ताला से इस्तिआज़ा करो, अल्लाह ताला से पनाह मांगो, क्योंकि बेशक वो सुनने वाला और इल्म वाला है। यानी अल्लाह ताला की तरफ जाओ और कहो, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, इसकी शैतानियत से मुझे बता, इसके वसवसों से मुझे तू बचा ले। इन्नल लदीन तक़ो, यकीनन वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है, कोई खतरा आता है, जैसे ही याद आता है वैसे ही वो देखने वाले बन जाते हैं, फौरन अल्लाह ताला को याद करने वाले बन जाते हैं। वसवसा आया, दिमाग भटका, दिल भटका, जैसे ही याद आया कि अरे ये गलत है, फौरन अल्लाह की तरफ लौटने लगते हैं, अल्लाह ताला को पुकारने लगते हैं, अल्लाह ताला से माफिया मांगने लगते हैं। वइज़ा लम तातिहिम, और उसके बाद वइख्वानुहुम, एक तरफ तो मोमिन है, जैसे ही याद आया वैसे ही माफी मांग लेते हैं, लेकिन जो शैतान के भाई हैं वो गुमराहियों के अंदर चले जाते हैं और उसमें कोई कमी नहीं करते हैं। एक तरफ वे मोमिन लोग, गलती होती है, सबके दिल में वसवसा आता है, गुनाह का ख्याल आता है, गुनाह कर भी लेता है, पर जैसे ही याद आए वो रिटर्न हो जाता है, माफी मांगता है। लेकिन जो शैतानी लोग होते हैं, शैतान के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, कितना ही कुछ हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो गुमराही में बढ़ते चले जाते हैं, उसी के अंदर रहते, कोई कमी नहीं करते, शैतान के रास्ते पर वो लोग चलते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कुफ्फार का एक मसला बता रहा है कि वइज़ा लम तातिहिम बिआया, अब ये लोग क्या करते थे, अल्लाह के नबी से मौजज़ात की डिमांड किया करते थे, पहाड़ चला कर दिखाओ, पानी बहा कर दिखाओ, सोने का करके दिखाओ, ऐसी डिमांड्स किया करते थे, अगर नबी हो ना ये सब करके दिखाओ, जबकि पूछने का मकसद ये नहीं रहता था कि हम ईमान ले आएंगे, परेशान करना मकसद होता था। अल्लाह ताला कहता है कि जब आप उनके पास कोई आयत लेकर नहीं आते, मौजज़ा लेकर नहीं आते, तो वो कहते हैं कि तुम क्यों नहीं ला रहे हो हमारे लिए, कुछ लाकर क्यों नहीं दिखा रहे हो। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह के नबी आप उन्हें ये जवाब दीजिए कि इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी, मैं तो पैरवी करता हूँ उस वही की जो अल्लाह ने मुझ पर की है, यानी तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग में बातें नहीं करूंगा, तुम सोचो कि तुम जो बोलो वो मैं करने लग जाऊं, ऐसा होने वाला नहीं। मैं तो अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है, हुक्म दिया, उसके मुताबिक अमल करता हूँ। हाज़ा बसाइरुम मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से आंखें खोलने वाली चीजें हैं, हिदायत है, रहमत है ईमान वालों के लिए। यानी अल्लाह ने जो कुरान दिया है उसमें लाइट है, नूर है, हिदायत है, रहमत है ईमान वालों के लिए, इसे पढ़ो ना, समझो ना, उल्टी सीधी डिमांड कर रहे हो, मोजज़ात मांग रहे हो, कुरान पर तो गौर कर लो, किताब पर तो गौर कर लो, अल्लाह की आयतों और दलीलों पर तो गौर कर लो। वइदा कुरिअल कुरान, अब अल्लाह ताला इसके बाद कुरान का मकाम बता रहा है, वइदा कुरिअल कुरान, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो, खामोश रहो, खामोश लोगों को करो और खुद भी खामोश रहो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। यानी कुरान की जब तिलावत होती है, जब चिल्लाना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, चुपचाप कुरान सुनना चाहिए, कुरान पर दिमाग और दिल लगाना चाहिए, ये अल्लाह ताला हमें यहाँ पर हुक्म दे रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला अपना जिक्र बता रहा है, अल्लाह को याद करने का तरीका बता रहा है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका, अपने रब को अपने दिल में याद करो, डरते हुए याद करो, खौफ के साथ याद करो, बहुत ज्यादा तेज आवाज में याद मत करो, धीरे धीरे याद करो, सुबह भी याद करो, शाम को भी याद करो, और गफलत पड़े हुए लोगों जैसे मत हो जाओ। जैसे बहुत सारे लोग गाफिल होते हैं ना, कभी दुआएं नहीं पढ़ना, अस्कार नहीं करना, अल्लाह को याद ना करना, दुआ ना मांगना, तौबा ना करना, इस्तगफार ना करना। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम दिल में अल्लाह को याद करो, डरते हुए खौफ के साथ याद करो, बहुत चिल्ला कर मत पुकारो, पर धीरे धीरे पुकारो, सुबह भी पुकारो, शाम को भी पुकारो, बार बार अल्लाह ताला को याद किया करो, क्योंकि जो याद करता है उसका दिल जिंदा रहता है, जो नहीं याद करता उसका दिल मुर्दा हो जाता है। और आखिर में अल्लाह ताला यहाँ पर खास तौर पर फरिश्तों के बारे में, अपने महबूब बंदों के बारे में बता रहा है कि यकीनन वो लोग जो अल्लाह के पास हैं वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते, उसकी तस्बीह बयान करते हैं और सजदे करते हैं। यानी वो अल्लाह ताला की इबादतें करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, सजदे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके दिल में तकब्बुर होता है ना, वो इबादत नहीं करता, तकब्बुर होता है वो दुआएं नहीं पढ़ता, तकब्बुर होता है वो तौबा नहीं करता। अल्लाह कह रहा तुम तकब्बुर मत लाओ अपने अंदर, अल्लाह ताला को पुकारो, उसके आगे झुको, गिड़गिड़ाओ, रो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे मसाइल दूर कर देगा, परेशानियों को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दूर कर देगा। तो इसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बेहतरीन और प्यारी तालीमात अल्लाह ताला हमें दे रहा है। उसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बताना चाहता है कि बंदा मोमिन को हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को अपनी जिंदगी बनाना चाहिए। अब ये तो हुआ तर्जुमा। अब उसके बाद आज की आयत में आए हुए मुश्किल अल्फाज, वली कहा जाता है प्रोटेक्टर को, बचाने वाले को। उसके बाद अल-गई कहा जाता है इरर को, खराब अमल को गई कहा जाता है, इरर कहा जाता है। अफ़्व कहा जाता है
معافی کو, टॉलरेंट को, माफ करने को अफ़्व कहा जाता है. यंज़गन्ना, सजेशंस कम टू यू, तुम्हें कोई शैतान की तरफ से वसवसा आए, शैतान तुम्हें वसवसे के अंदर डाले. तौइफ कहा जाता है इम्पल्स को, वसवसे को. वसवसा अगर शैतान की तरफ से आए. इश्तबैतहा, ब्रिंग देम फॉर अस, हमारे लिए लेकर आओ. हमारे लिए क्यों लेकर नहीं आ रहे हो, निशानी लाकर दिखाओ. बसाइर कहा जाता है इनलाइटमेंट को, नूर को, रोशनी को. अनसिटू, पे अटेंशन, यानी कुरान पर गौर लगाओ, कुरान पर तवज्जो करो. नफ्सिक कहा जाता है इन योर माइंड, इन योर हार्ट, दिल के अंदर अल्लाह ताला को याद करो, दिमाग में अल्लाह ताला को याद करो. गुदू कहा जाता है मॉर्निंग को, और आसाल कहा जाता है इवनिंग को. सुबह और शाम अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला का जिक्र करो, अल्लाह ताला को पुकारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बार बार याद करो. तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम कुरान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आज माशाअल्लाह सूरह आराफ मुकम्मल हो गई, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, नए अल्फाज कम होते जाएंगे, अल्फाज रिपीट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो जो बेसिक अल्फाज लगते हैं मुझे ज्यादा मुश्किल, वो मैं आपके सामने रखता हूं. अब इसके बाद हमारा बुनियादी नुक्ता तदब्बुर. आज की आयात पर हम क्या गौर करें या क्या गौर हमें करना चाहिए. नंबर 1, जब बंदा इखलास से अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसका वली बन जाता है. जब बंदा अल्लाह का हो जाता है ना, इबादत करता है, अल्लाह के लिए इबादत करता है, शिरक नहीं करता है, रियाकारी नहीं करता है, अल्लाह ताला का नेक बंदा बनता है. जब बंदा नेक बनता है तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसका मददगार बन जाता है. अब सोचिए ना कि सारी कायनात एक तरफ, अगर अल्लाह आपका वली बन जाए तो कौन आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, कौन आपको तकलीफ दे पाएगा. तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों का वली बन जाता है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की मदद फरमाता है जो लोग अपने अमल को सालिह बनाते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी को सालिह बनाते हैं, जो अपने अमल को बेहतर बनाते हैं. अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों का मददगार बन जाता है. पॉइंट नंबर 2, जब अल्लाह बंदे का वली हो तो उसे वो अच्छाई के रास्ते बताता है और बुराई से रोक देता है. जब अल्लाह किसी का वली बन जाता है ना, तो उसे अच्छाई के रास्ते नजर आने लगते हैं, बुराई के रास्ते उसे बुरे लगते हैं. हर अच्छाई पर अमल करने का दिल चाहता है, हर बुराई से भागने का दिल चाहता है. वरना उसके अपोजिट जो हमारी जिंदगी है, हमें अच्छाई पर चलना बुरा लगता है, बुराई पर चलना अच्छा लगता है. पर जो अल्लाह का वली होता है ना, उसे अच्छाई पर चलना अच्छा लगता है और बुराई उससे बुरी लगती है. यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जैसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ विलायत के दावे करते हैं, अरे ये तो साहब बहुत पहुंचे हुए अल्लाह के वली हैं. और कौन से वली, कभी नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, एक जगह रहते हैं, यहाँ से हिलते नहीं, यहाँ से उठते नहीं, इतने साल से बैठे हैं, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता. अल्लाह का वली होता है नेक इंसान, अल्लाह का वली होता है इबादत गुजार, अल्लाह का वली होता है उसकी रजामंदी पर चलने वाला, अल्लाह का वली होता है सुन्नत से मोहब्बत करने वाला. वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता जो इबादतों से दूर हो. ये बात अल्लाह ताला कह रहा है, कोई मौलवी साहब नहीं. अल्लाह ताला कुरान में ये बात हमें बता रहा है. पॉइंट नंबर 3, कुरान अल्लाह की किताब है, इंसानी कलाम नहीं. जैसे कई लोगों ने एतराज किया उस दौर में भी, कुरान पर बाद में भी, कि कुरान तो लोगों ने बनाया है, अरबी जानने वालों ने बनाया है. अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि यकीनन नज़्ज़लल किताब, अल्लाह ताला वो है जिसने किताब को नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया. कुरान का नाजिल करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ही ने कुरान को नाजिल किया. ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तालीम है, अल्लाह की तरफ से हिदायत है. अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ये बात साबित कर रहा है कि कुरान अल्लाह की किताब है, न कि कोई इंसानी कलाम है. इसलिए कुरान में कभी शक नहीं करना चाहिए, कुरानी तालीमात में शक नहीं करना चाहिए. वरना बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने कुरान पर भी एतराज किया है, अपने आप को मुसलमान बोलने वाले हैं और कहते हैं कुरान की आयत समझ में नहीं आती, आयत समझ में नहीं आती. कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट नंबर 4, मदद करने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसके अलावा कोई मदद करने वाला नहीं. आप चाहे जहां जाकर झुक जाओ, गैरों को बड़ा बना लो, गैरों से मांगने वाले बन जाओ, अल्लाह के दुश्मनों और दीन के दुश्मनों को अपना दोस्त बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, मदद तो बस अल्लाह ही करे. अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं. वही मदद करता है, वही रास्ते खोलता है, वही परेशानी से बचाता है, वही तकालीफ से बचाता है, वही दुख से निकालता, वही सुख देता, वही बीमारी से निकालता, वही शिफा देता, वही जिंदगी देता, वही मौत देता, वही औलाद देता, वही कारोबार देता. उसके सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है. अल्लाह ही मदद करने वाला, अल्लाह ही नासिर है. अल्लाह ताला हर हाल में इज्जत देने वाला, अल्लाह ताला हर हाल में परेशानी और तकालीफ से बचाने वाला है. पॉइंट नंबर 5, जो सुन ना सके, जवाब ना दे सके, वो इबादत के लायक नहीं. इबादत के लायक वो जो सुनता भी है और जवाब भी देता है,
जो सुनता भी है सदा पूरी करता है, जो सुनता भी है जरूरत पूरी करता है, जो सुनता भी है और मदद करता है। इबादत के लायक वो जो सुन सके और जवाब दे सके। अगर सुनने और जवाब देने की ताकत ना हो तो माबूद नहीं हो सकता। वो कभी भी आपका रब नहीं हो सकता, वो रुबूबियत के लायक नहीं हो सकता, वो उलूहियत के लायक नहीं हो सकता, वो इबादत के लायक हो ही नहीं सकता जिसकी सुनने और जवाब देने की ताकत ना हो। पॉइंट नंबर 6, सच्चा मुसलमान वो जिसमें माफ करने का जज्बा हो। बड़ा मुश्किल काम होता है, बोलने में बहुत आसान लगता है, सुनने में बहुत आसान लगता है, पर माफ करना अपने आप में बहुत बड़ा जज्बा होता है। ताकत है बदला लेने की फिर भी आप माफ कर रहे हैं, ताकत है जवाब देने की फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ताकत है कि अभी यहीं पकड़े उसे मारे पीटे काम खत्म कर दे, पर आप माफ कर रहे हैं। माफ करना बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा होता है जो मेरे और आपके नबी की सारी जिंदगी के अंदर मौजूद है। आपने गाली देने वालों को माफ कर दिया, परेशान करने वालों को माफ कर दिया, तकलीफ देने वालों को माफ कर दिया। आपने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। हाँ, बात दीन पर आती थी तो आप चुप नहीं रहते थे, और बात अगर जात पर आती थी कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया, माफ कर दिया करते थे, छोड़ दिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे। यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ा जज्बा है, और सच्चा मुसलमान वही जिसके अंदर माफ करने का जज्बा हो। पॉइंट नंबर 7, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये हमारी जिम्मेदारी, कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना हमारे पैदा किए जाने का मकसद है, दुनिया में आने का मकसद है, जिंदगी का मकसद है, कारोबार का मकसद है, पैसे का मकसद है, घर का मकसद है, नेमतों का मकसद है। इस दुनिया में अगर आप आए हो तो आपका मकसद ही है भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। जो अच्छाई आप जानते हो लोगों तक पहुंचा दो, जो बुराई आप जानते हो लोगों को उससे रोक दो। ये आपके दुनिया में आने का मकसद है, ये आपके पैदा होने का मकसद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे आपके इस मकसद के बारे में यकीनन कल रोज़े क़यामत सवाल करेगा। पॉइंट नंबर 8, अक्लमंद इंसान कभी खुद को जाहिल नहीं बनाता बल्कि जाहिल को इग्नोर करता है। जो अक्लमंद होता है ना, वो कभी खुद को जाहिल नहीं बनाता बल्कि जाहिल को इग्नोर करता है। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, अभी आप रास्ते पर चल रहे हैं, सामने से एक जाहिल आया, गलत वो है, उसके बाद भी आपको गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो हम उसके बराबर नहीं उतरते, हम उसके जैसे जैसा वो बोल रहा है वैसे बोलने नहीं लगते, बल्कि अपने आप पर कंट्रोल करते हैं। कई लोग जाहिल दीन के लाइन में मिलते हैं, उल्टे सीधे सवाल करेंगे, मसले मसाइल उल्टे सीधे बयान करेंगे, आप बात कर रहे हैं आपसे बेजा बहस करेंगे। अल्लाह कहता है वारिज़ अनिल जाहिल, जाहिलों से एराज करो, इग्नोर करो, क्योंकि इससे बहस करने में आपका नुकसान है, ये आपको अपने बराबर बना देगा। जब तक वो बोलता है आप नहीं बोलते, आपकी इज्जत है, उसकी जिल्लत है, लेकिन जब आप जवाब देते हैं तो लोग कहते हैं अरे दोनों तो एक ही जैसे हैं, दोनों तो एक ही बराबर है। तो यकीनन जाहिलों से एराज करना अक्लमंदी की दलील है, जाहिलों से दूरी इख्तियार करना अक्लमंदी की दलील है। यहाँ तक के जाहिलों को अपना दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जाहिल किसी भी मजलिस में आपको जलील कर देते हैं आकर। अब वो अकेले में अगर आपसे बिल्कुल बदतमीजी से बात करने के आदि महफिल में भी वैसे ही बात करेंगे, क्योंकि वो जाहिल है ना, उसे नहीं समझता कहाँ क्या बोलना क्या नहीं बोलता। इसलिए जाहिलों को कभी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, इल्म वाले लोगों से अपने ताल्लुकात मजबूत करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, गुस्सा और गलत ख्यालात आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। जैसे जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, बहुत ज्यादा बदला लेने का जज्बा हो रहा हो, बहुत ज्यादा कोई इंसान बुरा लग रहा हो, हमें गलत ख्यालात आ रहे हैं, गलत वसवसे आ रहे हैं, गुनाह की तरफ जाने का मन हो रहा है, उस हालत में पढ़ना चाहिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसमें हदीस में बात तफासिल ये भी आती है कि जब ज्यादा वसवसे आए तो उल्टे हाथ की तरफ 3 बार पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और थू 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 कर दो, तो इससे वसवसा चला जाता है, शैतान चला जाता है, शैतानियत चली जाती है। तो जब भी गुस्सा आए, गलत ख्यालात आए तो पढ़ना चाहिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतानी वसाविस से बचाता है। पॉइंट नंबर 10, शैतानी वसवसा, गुनाह, शक, गलत ख्यालात मोमिन को भटकाने के लिए आते हैं। ये कोई बुरी चीज नहीं है। देखिए आप दीन पर हैं, आप अमल पर हैं, आप इबादत पर, तो ये सब तो होगा।
शैतान तो देखिए हर तरीके से आएगा ना, वो गलत ख्याल भी लाएगा, वो शक भी लाएगा, वो हराम को अच्छा भी दिखाएगा, वो गुनाह की तरफ भी लेकर जाएगा। देखिए शैतान मेहनत करता है ईमान वालों पर, गुनहगारों पर नहीं करता, क्योंकि तो ऑलरेडी कर ही रहा है ना, उस पर क्या अपना टाइम खराब करना। वो टाइम अपना लगाता है ईमान वालों पर, क्योंकि उसका तो मकसद है ईमान वालों को भटकाना, उसका तो मकसद है नमाजी को बेनमाजी बनाना, उसका तो मकसद है हलाल कमाने वाले को हराम की तरफ लेकर जाना। वो उस मकसद पर काम करता है। तो शैतानी वसवसा, गुनाह, शक, ख्यालात जब भी आए तो उस वक्त अपने ईमान को जिंदा करना चाहिए, अपने अंदर के ईमान को ताज़ा करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा, अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, मुझे अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन वसवसों को कमजोर कर देता है। पॉइंट नंबर 11, बाबरकत है वो जात जो हर चीज को सुनता है और हर चीज का इल्म रखता है। मतलब ऐसे मौकों पर वाकई अल्लाह ताला का दिल से शुक्रिया अदा होना चाहिए। क्या रब है हमारे पास। अंधेरे रात में काले पहाड़ पर काली चींटी भी चलती है तो अल्लाह देखता भी और सुनता भी है। दिल में पुकारो अल्लाह जानता है, सीने के राज को अल्लाह जानता है, अकेले के गुनाह को जानता है, मजलिस के गुनाह को जानता है। तो बंदा मोमिन को अल्लाह ताला की जात पर बड़ा फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे शिर्क से बचाया, बिदअत से बचाया, खुराफात से बचाया, कुफ्र से बचाया। मैं कैसे रब की इबादत करता हूँ जो सुनता भी है और इल्म भी रखता है। मेरी जो परेशानियां ना मेरा अल्लाह सब जानता है, मेरे कर्जे मेरा रब जानता है, मेरी बीमारी मेरा रब जानता है, मेरा टेंशन मेरा रब जानता है, मेरी गम फिक्र को मेरा रब जानता है। मेरा रब सब जानता है, मेरे रब को सब इल्म है, मेरे रब के इल्म से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस बात पर बंदा मोमिन को बड़ा फख्र होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा ईमानी दर्जा मुझे दिया है, तौहीद का इतना ताकतवर इल्म मुझे दिया है कि मैं ऐसे रब को पुकारता हूं जो सुनने वाला और इल्म वाला है। पॉइंट नंबर 12, मोमिन गलत ख्यालात आने पर शैतानी वसवसों से पनाह मांगता है। देखिए मोमिन और काफिर का फर्क समझ लो आप, मोमिन और फासिक का फर्क समझ लो। मोमिन को जब गलत ख्यालात आते हैं तो बाउज़ बिल्लाह पड़ता है, लाहौल वला कुव्वत पड़ता है और उससे बचता है। और जो फासिक होता है ना वो गलत ख्यालात की तरफ जाता है, वो गुनाह की तरफ जाता है, वो हराम की तरफ जाता है। तो मोमिन गलत ख्यालात आने पर भागता है और फासिक गलत ख्यालात आने पर उसकी पैरवी करता है, उसके मुताबिक चलना चाहता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है मोमिन और फासिक का। हम देखें कि हम कहाँ हैं, हमारे पास जब गलत ख्यालात आते हैं हम उसकी तरफ जाते हैं या उससे भागते हैं, उससे अपने आप को बचाते हैं, अपना दिमाग बांटने की कोशिश करते हैं। अपने अमल पर भी बंदा मोमिन को इन हालात में गौर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, शैतान हक परस्त के साथ गुमराह करने का हर तरीका अपनाता है। देखिए आप सोच लीजिए, और इसकी मिसाल थोड़ा मैं आपको कुरान की आयत से भी बताऊं कि शैतान हक परस्त को भटकाने का हर रास्ता अपनाता, हर रास्ता अपनाता। कैसे? जब अल्लाह ताला ने शैतान से नाराजगी का इजहार किया, इबलीस से नाराजगी का इजहार किया और कहा निकल जा, तो उसने क्या कहा था अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे कयामत तक की मोहलत दे। कहा मोहलत दे दी। कहा अल्लाह ताला मैं तेरे बंदों के पास जाऊंगा, दाएं से जाऊंगा, बाएं से जाऊंगा, इधर से जाऊंगा, उधर से जाऊंगा, हर तरीके से जाऊंगा, हर तरीके से गुनाह को अच्छा बताऊंगा, जो ताकत मेरी है वो ताकत लगाऊंगा और तेरे बंदे को गुमराह करूंगा। यानी शैतान हक परस्त को गुमराह करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता है। वो हर रास्ते से आता है, वो शहवात के रास्ते से आता है, वो पैसे के रास्ते से आता है, वो कारोबार के रास्ते से आता है, वो वसवसों के रास्ते से आता है, वो शक के रास्ते से आता है। हर रास्ते से शैतान आता है। क्योंकि बताइए कि शैतान अगर शैतान बनकर आएगा कोई इसको कबूल करेगा? शैतान अच्छा बनकर आता है, अमल को अच्छा बताता है, गुनाह को अच्छा बताता है, हराम को अच्छा बताता है, लोन को अच्छा बताता है, इंश्योरेंस को अच्छा बताता है, इक्विटी के अंदर पैसा लगाओ, इंश्योरेंस में पैसा लगाओ, अच्छा बताता है। क्यों? क्योंकि अगर बुरा बता देगा तो कौन जाएगा, बुरा बता देगा तो कौन कबूल करेगा। तो शैतान गुनाह को मुज़य्यन करता है ताकि इंसान उसकी तरफ जाए। तो शैतान हक परस्त को भटकाने का कोई रास्ता कभी भी नहीं छोड़ता है। पॉइंट नंबर 14, रब ने जो दिया है इसकी पैरवी करना नबी का तरीका है। देखिए यहाँ पर अल्लाह के नबी कह रहे हैं ना कि हमारे पास वसवसे लेकर आओ, जो कुफ्फार ने कहा, तो अल्लाह के नबी ने क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया कि मैं तो पैरवी उसकी करता हूँ जो अल्लाह ने मुझे दिया है। तो अल्लाह के नाजिल करदा दीन की पैरवी करना ही नबी का तरीका है। अपनी अकल, अपना दिमाग, मुझे क्या अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह क्या कहता है वो मेरी जिंदगी, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं वो मेरी जिंदगी। तो शरीयत पर अमल करना ही मोमिन की जिंदगी है, कुरान पर अमल करना मोमिन की जिंदगी है, हदीस पर अमल करना मोमिन की जिंदगी है, दीन को दीन मानना मोमिन की जिंदगी है, दीन से मोहब्बत करना मोमिन की जिंदगी है, दीन को अपनाना मोमिन की जिंदगी है।
मोमिन उस पे चलता है जो रब का फरमान और नबी का तरीका हो। सब जाए दुनिया एक तरफ, चाहते जाए एक तरफ, रिश्ते जाए एक तरफ, ताल्लुकात जाए एक तरफ, वो ये देखता है कि मेरा रब क्या चाहता है, मेरे नबी क्या चाहता है, बात खत्म। अगर आप ऐसे होना तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ऐसे नहीं हो तो अपने आप को ऐसे बनाने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 15, कुरान की हर बात हिदायत, रहमत और नूर है। कुरान की हर बात, हर चीज हिदायत भी है, रहमत भी है और नूर भी है। नूर मतलब एक रोशनी। जब आप कुरान पर अमल करते हैं ना, आपके दिल को सुकून मिलता है, आपके दिल को इत्मीनान मिलता है, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आता है। अल्लाह ताला ने कुरान को हिदायत भी बनाया है, रहमत भी बनाया है और नूर भी बनाया है, इसलिए कुरान को अपनी जिंदगी बनाओ। पॉइंट नंबर 16, जब कुरान को खामोशी से और दिल से सुना जाए तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर रहम करता है। यानी जो लोग कुरान को दिल से सुनते हैं, खामोशी से सुनते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर रहम करता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर रहम करना पसंद फरमाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी कभी कभी कुरान सुना करते थे। एक सहाबी को एक मरतबा आपने कहा कि इकरा, तू कुरान पढ़। सहाबी ने कहा क्या अकरा वालेका उनजिल, मैं आप पर कुरान पढ़ूं, जब पर आप पर तो कुरान आया है, कहा मैं सुनना चाहता हूँ। वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, एक आयत पर आए कि कयामत के दिन क्या मंजर होगा अल्लाह के नबी, जब हम आपको शहीद और गवाह बनाकर लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी जब अल्लाह ने बताई तो अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ। साहबी कहते हैं मैंने सर उठाकर देखा तो अल्लाह के नबी रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि पूरी गाड़ी गीली हो गई थी कि इस आयत में अल्लाह मुझे मेरी जिम्मेदारी बता रहा है। कुरान सुनने से बड़ा मजा आता है, कुरान सुनने से दिल को इत्मीनान मिलता है, कुरान सुनने से जिंदगी गुजारने में मजा आता है, कुरान सुनने से टेंशन गम फिक्र कम नजर आता है। इसलिए कुरान को सुना करो, कुरान को पढ़ा भी करो और सुना भी करो, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अफजल है। पॉइंट नंबर 17, जिक्र का अदब पता चला। जो अल्लाह का हम जिक्र करते हैं उसका अदब पता चला कि वो धीरे धीरे करना चाहिए, दिन रात करना चाहिए और डर कर करना चाहिए। तीन चीज पता चली, धीरे धीरे जिक्र करना चाहिए, दिनों रात करना चाहिए और डर कर करना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता। जो भी जिक्र आपको याद है पढ़ा करो, दिन में पढ़ लो, रात को पढ़ लो, सुबह शाम के अस्कार कर लो, सुबह शाम की दुआएं पढ़ लो। दुआओं का खुद को आदी बनाओ, जिक्र का खुद को आदी बनाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। पॉइंट नंबर 18, अल्लाह का जिक्र इंसान को गफलत से भी निकालता है और तकब्बुर को खत्म करता है। जो अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, एक तो गफलत से निकल जाते हैं, मतलब वो गाफिल नहीं रहते, होशियार रहते हैं, और दूसरा तकब्बुर नहीं आता ऐसे लोगों में कभी भी। जो दुआएं पढ़ने के आदी होते हैं, अल्लाह का जिक्र करने के आदी होते हैं ना, कभी भी तकब्बुर नहीं आता उनके अंदर, घमंड नहीं आता उनके अंदर, और दूसरा गफलत नहीं आती उनके अंदर। ये भी बड़ी एक अहम चीज हमें पता चलती है। आखिरी बात या आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 20, इबादत कोई भी करो, इबादत दिल से होना चाहिए, रस्म पूरी करने के लिए मत आओ। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है ना कि अल्लाह के पास जो है ना, वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते, वो अल्लाह की इबादत करते हैं, दिल से करते हैं। रस्म अदा करने के लिए नहीं आते कि मस्जिद तो आ गए, फटाफट खड़े हुए, रुकू किया, सजदा किया, काम खत्म कर लिया, वैसे नहीं। इबादत दिल से होना चाहिए, इबादत खुशी खुजू के साथ होना चाहिए, इबादत में दिल हाजिर रहे, जिस्म हाजिर रहे, दिमाग हाजिर रहे। ऐसी इबादत बंदे मोमिन को करना चाहिए और अल्लाह ताला ऐसी ही इबादत को कबूल फरमाता है। ऐसी ही इबादत करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। ये तकरीबन आज के बुनियादी पॉइंट थे। आखिरी पॉइंट होता है हमारा अमल। नंबर 1, हर परेशानी और तकलीफ में याद रखो कि हमारे साथ अल्लाह है। तकलीफ, दुख, गम, दुश्मन, तकलीफ कुछ भी आए, याद रखो कि हमारे साथ अल्लाह है। ये याद रखना चाहिए बंदे को। नंबर 2, जितना मुमकिन हो लोगों को अपनी जात के लिए माफ करो, अपनी जात के लिए बदले मत लेते फिरो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, जितना मुमकिन है माफ करने वाले बनो। नंबर 3, जब शैतानी ख्यालात आए तो दुआ पढ़ो, जितना, जैसे आजकल बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साहब नमाज पढ़ो तो दिल ही नहीं लगता, कुरान पढ़ो दिल ही नहीं लगता, इबादत में मन ही नहीं लगता, इबादत पढ़ो दिमाग इधर उधर जाता है। पढ़ा करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, क्योंकि वो तो आए इसीलिए है ना, वो शैतान तो आपको इबादत से दूर करना चाहता है ना, तो इसलिए जब शैतानी वसवसे आए तो बहुत ज्यादा दुआ पढ़ा करो। चौथा पॉइंट ये है कि दुनिया में आने के मकसद को याद करो। आपको अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा है कि आप भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अपने इस मकसद को याद रखो, अपने मकसद पर मेहनत करो, तभी आपका दुनिया में पैदा होना कामयाबी की दलील बनेगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि कुरान की अहमियत को समझो।
قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنایا ہے، شفا بنایا ہے، نور بنایا ہے، فرقان بنایا ہے، نہ جانے کتنی خاصیت ہے۔ اس لیے قرآن کی اہمیت کو سمجھو، قرآن کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل، قرآن سے دم کرنا، یہ سب کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بڑی اہم کتاب بنایا ہے۔ تقریباً انہی باتوں پر ہماری آج کی نشست مکمل ہوتی ہے، باتیں مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، تو میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، جب ختم ہو ایمان پر ختمہ فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔